Hello students, good morning. How are you? We have discussed about the refraction of light by the different mediums. When light passes through the different mediums, what happens? We have discussed about the refraction of light. Further, we will discuss about the lens. In this chapter, we will discuss the last topic, that is lens. In the lens, there are several topics we will cover. In the lens, we will discuss types of lens, introduction of lens, introduction. After that, we will discuss the image formed by the lens. After that, we will discuss the lens formula. Further, we will discuss the magnification. Before going to discuss the magnification, just we will discuss the sign convention. Okay. After that, we will discuss the several numerical problems. Okay. Let us discuss about the lens. What is the lens? Lens is a piece of glass which is bounded by the two spherical surfaces. Okay. I am going to write here the definition of lens. Lens is a transparent glass bound by two spherical surfaces. Okay. So it means what? We will consider the transparent glass of a solid sphere. If we will take a part of this section, then this part will symbolize this structure is known as lens because it is made up of the transparent glass and it is bounded by the two spherical surfaces. Here is another lens that is known as by the structure concave lens, and this is known as convex lens. When we will cut the both sides by a curve shape, then this lens will becomes in this form. Okay. So there are two types of lenses, that is known as convex lens and another is known as concave lens. What are the applications of these two lenses? Okay. This lens is always used to application for the diverging of light, but the convex lens always used to converge the light. Okay. Divergence means it will spread the light. Diverge means it will spread the light, and converge means it will focus on a particular point, and that point where it will focus, that is known as focus point. So just we have drawn the spherical part. So this is the half of the center, that is known as radius of curvature in a spherical mirror, but here we will say double of the focal length, and half of the length is known as focus point. Here again this surface have focal length and this point is known as 2f. Okay. For this focal length, the pole will be P1, and for this focal length will be the pole P2 and focal length f2. Same in this case, if here will be the pole of the lens P1, then it have the curved structure, so its face will be inside the sphere, and here will be the 2f and this will be the equals to f.
Okay, another point is here, that is pole P2, and focus point, that is F for this structure. This axis is known as, which is passing through the optical center. Where is the optical center? When we will take the horizontal equivalent section of the lens and horizontal equivalent section of this lens, when these two axes will meet, this point will be known as optical center. Optical center. Here also it is a optical center. Sometimes we used to denote this optical center by C, or sometimes we will use O. Okay, so these are the two different types of lenses that is known as concave lens and convex lens. Okay, जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा होगा? ये तो बिल्कुल ही एक सर्किल की तरह होगा, ये भी बिल्कुल सर्किल की तरह होगा। अगर इसका हम क्या करें, फ्रंट व्यू देखें, है ना, ये साइड व्यू है, तो फ्रंट व्यू में ऐसा दिखाई देगा, एट द सेंटर इट्स थिकनेस will be less than outer surface. इसका जो बीच वाला हिस्सा होगा, है ना, बिल्कुल क्या होगा, ये सर्कुलर शेप का बनेगा, और जब सर्कुलर शेप का बनेगा तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, जो बिल्कुल सेंटर में पार्ट आएगा, वो कौन सा होगा? वो बहुत ही थिक होगा। जो इसके आउटर साइड्स होंगे, है ना, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, जो बीच में होगा, है ना, उसकी थिकनेस बहुत कम होगी। ऐसे ही जो कन्वेक्स लेंस है, इसको हम अगर फ्रंट व्यू देखें, ये तो साइड व्यू रहा, अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट आएगा कि इसमें इसके जो सेंटर पे थिकनेस है ना, थिकनेस विल बी ग्रेटर, इसका जो थिकनेस होगा वो ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? आउटर सरफेस के कंपैरिजन में। आउटर सरफेस के कंपैरिजन में इसकी जो सेंटर पे मोटाई होगी वो ज़्यादा होगा, और जो आउटर साइड्स है वहाँ पे थिकनेस कम होगा। यहाँ पे जो इसका सेंटर है, सेंटर पे क्या होगा, थिकनेस कम होगी, आउटर साइड्स में ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं कनकेव लेंस, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स लेंस है, सॉरी, हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, है ना। तो पहला केस हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस हो गया, तो इसका हम क्या करें, एक ऑप्टिकल सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर पास करेगा, और जो वर्टिकल लाइन है जो इसका इंटरसेक्शन कर रहा है, वो दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलेंगे वही क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना। तो इसका फोकस पॉइंट किधर होगा, यहाँ पर होगा। इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसके जस्ट डबल पे यहाँ पे, यानी कि 2F होगा और ये F होगा। इसका कहाँ होगा, इसका पॉइंट होगा इधर, है ना, सेम डिस्टेंस के हैं तो यहाँ पर F हो जाएगा। फिर से हम यही डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं कोई, है ना, इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगी, है ना। इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से, इस लेंस का काम होता है कन्वर्जिंग, है ना। तो कन्वर्ज कहाँ से होगा, इस पॉइंट से, है ना। दूसरा काम क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो हम लाइट पास कराएं ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन रहा है इमेज, ठीक है। अगर क्या है, वो 2F के बियॉन्ड है, बियॉन्ड 2F है, तो वो इमेज कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में, और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा,
है ना। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम देखें, है ना, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे एफ, यहाँ पे क्या हो गया 2f। फिर से हम यहाँ पे f ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 2f ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है ना, तो इसको कहाँ से पास करना है, फोकस से। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, ये होगा, है ना। तो बिल्कुल ही कहाँ बनेगा, बिल्कुल ही फिर से 2f पर बनेगा। जैसे जैसे कनकेव मिरर का इमेज फॉर्म होता था वैसे ही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, है ना। अब देखते हैं, दो केसेस हो गए कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी है, और इमेज क्या है, इमेज हमारा होगा ए डैश बी डैश। तो ये इसको हम लिख लेते हैं ए डैश और बी डैश, और ये क्या रहेगा ए और बी। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट को ए बी लिख लेते हैं और ए डैश बी डैश, है ना। तो इससे से समझना आसान हो जाएगा, है ना। तो इसका जो काम होता है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट्स करता है ना। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अभी हम इमेज फॉर्मेशन के बाद फिर से डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड केस में देखते हैं क्या होता है। फिर से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इस बार हमने क्या रखा है, f और 2f। फिर से हम इधर भी क्या करेंगे, f ड्रॉ करेंगे और इधर 2f। ध्यान से देखिएगा, ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, कन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो कन्वेक्स लेंस में क्या है, एक फोकस इधर है, दूसरा फोकस हमारा दूसरी साइड है ना। तो इसका काम है लाइट का कन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे, जो लाइट आएगी वो किधर से पास करेगी, इस फोकस से होकर के पास करेगी, क्योंकि इस पे पहले इस सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है, तो इसका फोकल लेंथ इधर है। तो अगली बार हमने इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, किसके, 2f और f के बीच में, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस से, और दूसरा कहाँ से पास होगा, यहाँ से। इट मीन्स क्या होगा, बियॉन्ड 2f होगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, ए बी ए डैश बी डैश, है ना। जितने भी इमेजेस बनेंगे वो क्या होंगे, सभी के सभी रियल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो लाइट क्या होगी, दूसरे साइड ट्रांसमिट हो ही जाएगी, है ना। तो हर एक केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। और यहाँ पे सभी जगह क्या हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना। तो एक बात तो कॉमन हो गई कि अभी तक जो मिला हमको, क्या मिला, रियल मिला, इन्वर्टेड मिला, है ना। फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं इसका, है ना, कि हमारा जो लेंस है वो यहाँ पर है, फोकल लेंथ यहाँ पर मान लिए, तो इसका डबल 2f हो जाएगा। फिर से यहाँ पर f और यहाँ पे 2f। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखा, है ना, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहीं पे होगा। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट जब पास करेगी, है ना, तो बिल्कुल ही क्या होगा, ये लाइट पैरेलल चलती चली जाएगी। देखिए लाइन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जा रहा है ना। ज़्यादा दूर तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट इधर से इंसिडेंट होगी, एक लाइट हम कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट इनफाइनाइट पे होगा, एट इनफाइनाइट। अभी भी क्या बन रहा है, इन्वर्टेड ही बन रहा है और रियल भी होगा। एक और केस है ना, लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, कि जो हमारा इमेज है वो क्या हो, फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो। तो ये फोकल लेंथ हो गया और ये 2f हो गया और ये 2f, और इसका पोल यहाँ होगा। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो यहाँ से जाएगा और ऐसे पास होगा। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है। तो इस बार जो लाइट पास होगी वो इधर जा रही है, मतलब इधर जाएगी तो दूर होती जाएगी, तो इधर जाएगी तो क्या होगी, मिलेगी लाइट। तो एक केस ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, जब इस लाइन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, तो ये कहाँ मिल रहा है, बियॉन्ड 2f मिल रहा है और लेंस के पीछे बन रहा है ना। तो लेंस के जब पीछे बनेगा तो क्या होगा,
वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, है ना। और पोजीशन तो सब लोग आप सब देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये केसेस हैं कन्वेक्स लेंस से जब इमेज फॉर्म होता है। ये डिस्टेंस ज़्यादा रखा हुआ है ना, इसको कम कर दीजिएगा, है ना। अब इसके बाद से डिस्कस करते हैं, है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस। ये तो कन्वेक्स लेंस का हो गया, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए बार बार, हम हमेशा एक ही रूल अप्लाई करेंगे इस पर, है ना। एक और केस आएगा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो क्या होगा, जब इनफाइनाइट पे होगा तो उस लाइट को कहाँ से पास करना है, फोकस से पास करना है, और दूसरी लाइट कहाँ से पास करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते इतना दूर है कि दोनों ही क्या होंगे, यहीं से होके पास करेंगे, और यहाँ से जब होकर के पास करेंगे तो सीधे सीधे क्या होगा, वो दोनों ही लाइट जो आएंगी, है ना, वो फोकस पे आकर के मिलेंगी। अभी हम लोग कन्वर्जिंग ऑफ लाइट जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा जिसको हम O मान लेते हैं, और फोकस पॉइंट F और 2F। सबसे ज़रूरी है कि किस पॉइंट पर हम F ले रहे हैं और इसका एक्चुअल पोजीशन क्या होगा, है ना। तो इसके लिए अभी ठीक है ये। तो अगर इसमें हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो यहाँ पे होगा लाइट ना, तो लाइट जो दिखाई दे रहा है कि इसको इधर आना चाहिए, आएगा नहीं, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस है ना, इसकी तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और किसके, फोकस से मिलाते हुए, अपने ही फोकस से ये मिलाते हुए लाइट निकल जाएगी, है ना। दूसरा क्या होगा कि दूसरा जो होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास कराएंगे, है ना। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास कराएंगे तो लाइट कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिलेगी। ये लाइट इधर जा रही है, ये लाइट इधर जा रही है, तो दोनों मिलने वाले हैं नहीं, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, आकर के इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट ये ओ डैश है तो ये मीन्स क्या होगा, आई डैश होगा, है ना। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, ये हाईली डिमिनाइज्ड हुआ, मतलब बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, है ना, या फिर केवल डिमिनाइज्ड लिख सकते हैं। एक और केस देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F है, 2F F 2F, है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है बिटवीन 2F एंड F, तो इसको कहाँ से पास करना चाहिए, यहाँ से पास करेगा। अगर लाइट यहाँ पर आई तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्जन कहेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर हम देखें, है ना, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट तो C है, इसका नॉर्मल क्या होगा, C ही होगा। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इसका जो नॉर्मल होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ये, है ना। तो लाइट तो ऐसे जा रही है, लेकिन लाइट को क्या होना, अंदर की तरफ बेंड हो जाना है ना। फिर से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा कि नॉर्मल तो ये है ना, इसको इधर जाना चाहिए, है ना। अब दूसरा जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास कराना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करा दिया, अभी भी इमेज जो बना वो बहुत ही छोटा बना, ठीक है। तो इस तरह से जो कनकेव लेंस होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है हमेशा फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनेगा, और इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो इसके लिए हम कोई भी दो केस ड्रॉ कर लेंगे, है ना, तो वो कनकेव लेंस के सारे इमेजेस का वही केस होता है ना। उसमें ज़्यादा केसेस होते ही नहीं, बस दो ही केस कोई भी डिस्कस कर लेंगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख करके हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये रहा कनकेव लेंस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, है ना। तो अगर हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो जितनी भी लाइट इस सेक्शन से आएगी, है ना, तो इधर अगर फोकस पॉइंट है यहाँ पे 2F है, तो सारी की सारी लाइटें कहाँ से पास करेंगी,
इस पॉइंट से होकर के पास करेंगे, है ना। अगर कोई लाइट यहाँ आ रही है तो ये भी क्या होगी, यहाँ से पास करेगी, है ना। तो ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है कि ये अमाउंट ऑफ लाइट जितनी भी आ रही है, अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो रही है, आ रही है ना, वो कहाँ से पास करी है, इस पॉइंट से पास करी है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सारी की सारी लाइट को कहीं एक जगह फोकस करता है ना। तो जब सारी की सारी लाइट को एक जगह फोकस करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज की क्लैरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, क्लियर होता है। तो इसलिए यहाँ पे इमेज जो बनेगा बहुत ही साफ और बिल्कुल शार्प इमेज बनेगा, है ना। तो लाइट क्या हो रही है, एक जगह जा करके कन्वर्ट हो जाएगी, एक जगह जाके मिल रही है, तो इसको कहेंगे कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिना है वो किस में हो रहा है, कन्वेक्स लेंस में हो रहा है। अब डाइवर्जिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। ये क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो यहाँ से अगर कोई भी लाइट आएगी, है ना, तो इसका सेंटर इधर है, अगर मिलाएं, है ना, तो इसको क्या होना चाहिए, नॉर्मल की ओर जाना चाहिए। अब जैसे ही फिर से अब यहाँ आ गए तो इसका सेंटर इधर मिलेगा, है ना। तो नॉर्मल की ओर नहीं जाएगा बल्कि नॉर्मल से दूर जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा लाइट क्या होता है, इस लेंस में कन्वर्ज होता है ना। तो ये जो लेंस है कनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लाइट के लिए यूज करते हैं, है ना। तो अब आगे है डिजीजेस के बारे में कि हमारी आंखों में कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, है ना, जिसके लिए उसके करेक्शन के लिए हम कौन सा इसमें से यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है, एनलार्ज करके, है ना। क्योंकि जितने भी इमेजेस बन रहे थे वहाँ पे सभी के सभी इमेजेस क्या थे, बड़े बन रहे थे, है ना। जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनका जो इमेज बना था वो काफ़ी बड़ा था। तो इसको लार्ज व्यू के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या है, डाइवर्जिंग हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बहुत कम एरिया कवर कर रहा है। तो ये किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए, और ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो ज़्यादा एरिया को दिखाने के लिए एरिया भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन एरिया कम है। तो ये क्या कर रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट को ये छोटा करके दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी इमेजेस बन रहे हैं वो सभी के सभी छोटे बन रहे हैं, है ना। तो ये जो काम होता है डाइवर्जन का, है ना, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिना है वो कनकेव लेंस में होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन का, है ना। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम केवल किसका लेंगे, कन्वेक्स लेंस का लेंगे, है ना। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ। तो कोई भी लाइट अगर इस डायरेक्शन में आती है ना, तो ये क्या है, इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, इनकमिंग रे ऑफ लाइट। जब लाइट इधर से आएगी तो इसको इधर से निकल जाना है ना। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अगर जो डिस्टेंस हमारा अगेंस्ट द, है ना, इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, इफ द measured distance is against the incoming light, then we will take नेगेटिव साइन। अगर हमारा जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट में है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इफ द measured distance, है ना, if the measured distance is same as the direction of incoming ray of light, then we will take the positive sign for the measurement of distance, है ना। अब दूसरा केस ये आता है कि अगर हमारा इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा बन रहा है, अगर अपोजिट है तो क्या लेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो क्या लेंगे, है ना।
तो इमेज फॉर्मेशन के लिए भी हम वही काम करते हैं कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड, है ना, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, इन अपोजिट टू एन ऑब्जेक्ट, then we will take negative sign. If image is formed same as in the same direction, in same direction of an object, then we will take positive. Okay, after just we will discuss the magnification. Magnification means, magnification will tell us about the relation between distance of image, distance of image from पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर. पोल नहीं कहते हैं इसमें, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. जो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ना. एफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम ओ. ठीक है, और हाइट क्या है, height h1 equals to height of object. h2 क्या है, height of image. ठीक है, तो इसके कारण मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन जो फार्मूला है वो क्या होगा, m इक्वल्स टू h2 बाई h1. h2 का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन u होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना. तो ये है मैग्निफिकेशन फार्मूला, है ना. मेरा लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. मिरर में क्या था, मिरर में ये पॉजिटिव साइन था, लेकिन लेंस में क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, तो इतना डिस्कस करिए और इस फार्मूले को यूज़ करके, है ना, जो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे अब सिलेबस लगभग पूरा हो जाता है ना, लेंस तक कंप्लीट है आपका, है ना. उसके आगे अगर कोई दिक्कत होती है ना, तो हम लोग क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं. ठीक है, टिल देन थैंक यू क्लास.